یہ ان کے دروازے کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کہ رات کو رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے اور کل روزہ ہو۔ آج انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یہ شہزاد بھائی کی گاڑی کھڑی ہے، ابھی دھلا کر لے کر آئے ہیں۔ مدینے جانا تھا، پھر پتہ چلا ہے کہ گاڑی کے کاغذات ہی ختم ہو چکے ہیں اور ان کو رینیو کروانا ہے، تب جا کر یہ گاڑی اب کام پر نکلے گی۔ تو بیچارہ گھر میں آ کر پریشان ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میرے لیے پریشانی بن جائے، کیونکہ یہاں کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں۔ میں تو اس وقت نا روٹی کے جو ٹکڑے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے ہیں، تو جا رہا ہوں کبوتروں کو ڈالنے کے لیے۔ یہ مکہ کے گلیاں اور بازار، یہاں پر رمضان شریف میں نا سارا دن بند رہتے ہیں، رات کو کام ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کو یہ شاپس کھلی ہوئی دکھائی دیں گی نا، تو رمضان شریف میں ڈے ٹائم یہاں پر ہر چیز بند۔ یہ ہیں مکہ کے کبوتر، ان کی میرے سے دوستی ہے، جب بھی مجھے دیکھتے ہیں تو یہ میری طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کیسے آ رہے ہیں میری طرف، سارے ادھر چلنا شروع ہو گئے۔ چلو ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ دانہ ڈالنے کے لیے یہ ہمارے پاس آتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہاں پر آس پاس جتنی بلڈنگیں ہیں نا، ان کے اوپر ان کبوتروں کا بسیرا ہے۔ یہ وہ پیچھے دانہ کھا رہے ہیں اور یہ پلاسٹک بیگ میرے ہاتھ میں۔ اب ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہو نا، تو کسی ڈسٹ بین وغیرہ میں پھینکیں۔ مجھے اس چیز کی نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پر جیسے ہوتا ہے جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ وہیں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یار جہاں پر آپ رہ رہے ہیں ان جگہوں کا احترام کریں۔ مکہ شریف میں خاص طور پر آپ موجود ہوتے ہیں تو ایسا کریں کہ یہاں تو کم از کم گند نہ ڈالا کریں۔ وہ کبوتر میرے پیچھے پیچھے ابھی بھی آ رہے ہیں۔ ہم اس ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، یہ ڈسٹ بین پڑا ہوا ہے، یہاں ایسے پھینکیں۔ یہیں وہ پاس سلون ہے، اس سلون کے پاس جب بھی میں گزرتا ہوں جہاں سے میں نے بال کٹوائے تھے، تو میرے دل میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ رات کو جو آپ نے دال بنائی تھی تو وہ کیسی سوادش بنی تھی، کہ اچھی بنی تھی کہ بری بنی تھی؟ ایکچولی رات کو جب ہم نے بتایا تھا سب کو، فون کر کے کال کر کے میں نے بتایا تھا کہ گھر میں کھانا بن گیا ہے اور آپ آ جائیں اور کھا لیں، تو سب نے پوچھا تھا کیا بنا ہے، میں نے کہا دال بنی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہی کھائیں۔ تو یقین کریں قسم سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کہا کہ یار اگر نہیں کھانی تھی تو اتنی محنت کرنے کی مجھے ضرورت کیا تھی۔ خیر کسی کو بھی وہ دال پسند نہیں آئی ہماری، اور ابھی بھی کھا رہے ہیں اور دوپہر کو بھی کھائیں گے۔ شام کو روزے کے لیے کوئی چیز آگے بنانی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا بناتے ہیں۔ ویسے وہ دال جو ہے نا کافی پڑی ہوئی ہے ابھی تک۔ اچھا، آپ میں سے جو جانتا ہو نا تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ یہ کون سا پودا ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے یا یہ نیاز بو ہے یا تلسی ہے۔ یہ اس کے اوپر یہ اس طرح کا لمبی سی کوئی پھول سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں چھوٹے سفید کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ پتے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو نا دوسرا ساتھ میں ایک پودا اور اس طرح کا دکھاتا ہوں۔ یہ پتا ہے اس کا، اور یہ ہے ایک، یہ ہے سیم طرح کا۔ اب یہ نیاز بو ہے یا وہ نیاز بو ہے؟ وہ تلسی ہے میرے خیال میں اور یہ نیاز بو ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر کسی پاس انفارمیشن ہو تو ضرور بتائیے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ نیاز بو نہیں، تلسی جو ہوتی ہے، تلسی اس کے پتے ان کا قہوہ پینے سے یا ان کی چٹنی کھانے سے نا وہ ہوتی ہے، سانس کی جو پرابلم ہے نا اس کے لیے یہ بہتر ہوتی ہے۔ تو مجھے اب ان دونوں میں سے کسی کی پہچان نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ ان میں دونوں میں سے کوئی ایک یا تلسی ہے یا نیاز بو ہے۔ تو آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ ان میں سے تلسی یا نیاز بو کون سی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی بتائیے گا کیا یہ سچ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ سانس کے لیے ٹھیک ہوتی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی سنا ہوا تو یہ ہے کہ تلسی جو ہے نا بہت فائدہ مند ہوتی ہے، تو کہیں میں کوئی غلط چیز نہ استعمال کر لوں، بنا پتہ ہوئے بندہ
नया कुछ स्यापा गल में डाल ले। ये आप देख रहे हैं, ये अब मेरा ये काम होता है कि मैंने ये चीज़ें बाहर फेंकनी होती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करने लगा हूँ, इन्हें उठा करना तो ये इनके दरवाजे के सामने रखता हूँ, ठीक है। चलो अब ये रख दिया है तो पता चलेगा अब इनको कि सफाई रखनी है कि नहीं रखनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देख लें। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। और जिस तरह आप इस भाई की सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए आगे। आज एक बहुत बड़ा मसला होने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने ये दिखाया है घर की सूरत हाल, तो मैं यार डेली का यहाँ से सामान उठाना, वहाँ पर फेंक देना, जाना और फेंक देना, तो एक हद होती है कि अगले बंदे को एहसास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यार मैं यहाँ पर अगर रख कर जाता हूँ तो नेक्स्ट डे अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं पड़ी हुई होती, मतलब मैं गंद जो फेंकता हूँ वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ होता, हम में से कोई भी बंदा वहाँ से नहीं उठाता, तो कौन है जो यहाँ से हमारा गंद उठाकर फेंकता होगा। ये कम से कम बंदे को शर्म आनी चाहिए। वो मूवी है ना मुन्ना भाई, MBS नहीं, मुन्ना लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें वो गांधीगिरी करता है, तो अगले बंदे को एक दफ़ा शर्म आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, पहले भी मैंने इनके इतने मास्क उठाकर इनके दरवाजे के सामने रखे थे, तो उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला तो उठाकर डस्टबिन में रख दिए, लेकिन कोई एहसास नहीं हुआ। अब फिर मैंने रखा है, फिर वहाँ पर से उठाएंगे और फेंकेंगे। अब यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि यार नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए अगले बंदे को समझाने के लिए कि हम भी साथ यहाँ पर रहते हैं और हम भी रेंट इस जगह का पे करते हैं जिस जगह पर आप रह रहे हैं, तो साथ में हमारा रूम भी है। खैर, बाकी रमज़ान शरीफ की इंशाअल्लाह ताला आमद है। आज रब मेरे का हुक्म हुआ तो रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आ जाएगा। और मेरी तरफ से मेरे सारे देखने वालों को जहाँ जहाँ रमज़ान शरीफ आज पहुँच चुका है, तो उनको रमज़ान शरीफ की मुबारक। वैसे अभी चांद नज़र नहीं आया, शायद मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल से इसकी मुबारकबाद भी दूंगा और दिखाऊंगा अभी चांद कहाँ पर नज़र आ रहा है। मक्का शरीफ में रह कर पहला मेरा रमज़ान है सऊदी अरेबिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम हम कुछ वक्त जाकर ना मक्का शरीफ में गुजारें, और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बातें करें। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन देखिए पता क्या बात है, मैं घर से भी दूर हूँ। मेरे लिए मैंने घर मजबूरी में छोड़ा हुआ है, और वहाँ पर मुझे पता है मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या है, मेरी वाइफ की क्या है, मेरे औलाद के बच्चों की क्या है। तो वो भी मुझे चीज़ें जब ज़हन में आती हैं, मुझे याद आती हैं, तो मुझे उनकी भी फ़िक्र होती है, उनके बारे में भी तकलीफ़ होती है, उन चीज़ों को लेकर घर की याद आती है। फिर पता चलता है जहाँ पर ऐसे मैं हालात में रह रहा हूँ, मामलात मेरे हैं, तो मैं याद करता हूँ यार पिछला मेरा रमज़ान कैसा था, कैसे हम सुबह उठा करते थे। मैं हेल्प किया करता था अपनी वाइफ की सहरी बनाने में, अफ्तारी के टाइम हेल्प कर दिया करता था, सारे इकट्ठे होकर हम अफ्तारी किया करते थे, जो बनाना है। बच्चों को भी होता था कि हमने रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा किस टाइम खुलेगा, साथ में खाना, जन्नत ने कोई चीज़ लेनी और मैंने कहना कि जन्नत अभी रोज़ा नहीं खुला, अच्छा कब खुलेगा, तो उसने लेकर बैठे रहना खजूर। तो ये चीज़ें याद तो आती हैं, अपना घर याद तो आता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भी मौका दिया है, और आज पहली बार रमज़ान की कोई देखें, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रमज़ान शरीफ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र मैं डेली बताता हूँ अपने रूममेट्स को कि रमज़ान आने वाला है, क्या करना है, तो वो आगे से कुछ नहीं कहते।
पाकिस्तान होता तो मैं पूरी शॉपिंग वगैरह रमज़ान का पूरे महीने का मैं राशन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में जमा करके रखता हूँ कि कोई किसी किस्म की परेशानी ना बने, टेंशन ना बने और आराम से रोज़े रख लिए जाएँ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही है, रमज़ान का पहला दिन है और साथ में टेंशन क्या बनने वाली है, बनी थी मुझे कि यहाँ पर मक्का शरीफ में सिक्योरिटी बहुत सख्त हो चुकी है, बहुत सख्त सिक्योरिटी हो चुकी है। जिधर भी देखें पुलिस की सिक्योरिटी की, फ़ौज की गाड़ियाँ आगे पीछे आ जा रही होती हैं। अब जिधर भी जाता हूँ 2-3 पुलिस वाले ना आ रहे होते हैं और हर वक्त मैं अपने आप को अलर्ट रखता हूँ कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के बगैर बाहर नहीं निकलना। तो आज गलती से मैं नीचे शॉप पर ही गया था कि मैं थोड़ा सा ब्रेड ले आऊँ, जो खुबस कहते हैं ना खाने वाले, वो ले आऊँ। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा हूँ, आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये कागजात चेक करने वाले हैं। तो खैर पता चला होता भी तो मैं क्या कर लेता, मैं अब उनके सामने हूँ। तो सामने ही उन्होंने मुझे ना इशारा किया इधर आ जाए। मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि अपने कागजात दिखाओ। मुझे अरबी नहीं आती थी, मैंने जाती कहा कि मुझे अरबी नहीं आती। अरबी में जितने अल्फाज मैंने सीखे हुए हैं ना, माफ़ी अरबी मान लो, तो वो मैंने अदा कर दिए। वो जदीद मतलब नए हो, मैंने कहा हाँ जी मैं जदीद हूँ। तो उन्होंने फिर मेरी तस्वीर ली, तस्वीर खींच कर उन्होंने डाटा अपना चेक किया कि ये इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है बीच में। फिर उसने साथ वाले ने इंग्लिश में मुझे कहा अकामा निकालो। मैंने कहा, वो ऊपर इशारा किया, मैंने उसे कुछ इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बताने की कोशिश की कि मैं तो यहाँ से सामान लेने आया हूँ। तो उसने कहा यू आर न्यू बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, डोंट कम आउट विद ऑल योर वीज़ा और वट एवर अकामा, जो कुछ उसने कहा था। तो अदरवाइज़ मुझे इसका फ़ाइन होगा या मुझे पकड़ लिया जाएगा, और जब पकड़ लिया जाएगा तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो ये हैं सारे मामलात। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या मक्का में मौजूद हैं या उम्रा के लिए आए हुए हैं या आ रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा ऐसा कीजिएगा कि कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स के बिना घर से बाहर मत निकलिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।